there may be some technical problem with Google Meet because I'm not getting you people. If you are getting me, then I can go ahead with our question. Right. Today we are on a very important question, and that is composition levy scheme. From the day one I am telling you कि जो GST है इसमें दो बातें important हैं. There are people who will get them registered under GST and they will be issued a GSTIN number, and there are people who are under GST but they will not apply for a GSTIN number. तो कुछ लोग हैं जो GST में तो रहेंगे लेकिन ये लोग GSTIN नंबर नहीं लेंगे क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ले सकते हैं. तो ये जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है ये क्या है और किन लोगों के लिए है और कैसे ये स्कीम जो है वो अप्लाई होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उस पर ये क्वेश्चन है. सो व्हाट इज कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम अंडर GST? What are the conditions for opting this scheme? Who are eligible to opt for this scheme? Who are not eligible to opt for this scheme? Discuss the benefits of opting composition scheme. तो सबसे पहले हम आते हैं कि what is composition levy scheme? ये है क्या? Large undertakings have the requisite resources to manage these new requirements of GST Act. The small and medium taxable persons may have problems to comply with these provisions of GST Act. जो तो बड़े लोग हैं, जो जिनके बड़े बिजनेस हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं और वो लोग इस स्कीम को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं. लेकिन जो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी है ट्रेडर्स की, वो इस GST की जो सरकार की कंडीशंस हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार ने जो उनको 37 एक साल के अंदर 37 रिटर्न्स फाइल करनी है, अगर वो इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है वो उसको लाया गया है. Therefore, for such registered taxable persons who are in category of small and medium industry, the government has come up with composition levy scheme under GST. A person opting for composition levy scheme under GST shall be able to enjoy privileges of this scheme and he shall not be required to follow the compliant procedures laid down in the GST Act. वो जो मुश्किल भरे रास्ते हैं जिनको प्रोसीजर्स कहते हैं हम GST के, उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा. GST Act in India is set to bring many compliance burdens on the persons registered under GST, क्योंकि उसके अंदर बहुत से बर्डन हैं compliance के जो हर आदमी पूरा नहीं कर पाएगा. So the composition levy scheme under GST is an option available to the taxpayers to pay tax at flat rate on fulfillment of certain prescribed conditions. अब जो GST के रेट्स हैं वो
5% से शुरू होते हैं और 28% तक जाते हैं। लेकिन जब मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आता हूं तो जीएसटी का एक फ्लैट रेट लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आप तभी ऑप्ट कर पाएंगे जब आप उसकी कुछ शर्तें पूरी करेंगे। द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स specifically designed for small taxpayers whose turnover is up to certain prescribed limits. छोटे व्यापारियों के लिए ये अल्टरनेटिव मेथड है कि आपको जो अगर आपकी जो टर्नओवर है वो एक लिमिट से नीचे रहती है, क्योंकि इसीलिए आप स्मॉल हैं, तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। So the composition levy scheme under GST will be applicable to a registered taxable person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed rupees 1.5 crore for normal states. यानी कि अगर आपकी टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च को पिछला साल खत्म हुआ है, अगर उसमें आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल ट्रेडर हैं, स्मॉल बिजनेस है आपका नॉर्मल स्टेट्स में, और जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की है उसमें 75 लाख है आपकी टर्नओवर, तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। These taxpayers shall have an option to pay tax at a flat rate in lieu of the tax payable by him. These new threshold limits were with effect from 6th October 2017. Earlier it was 75 lakhs and 50 lakhs for new states. Again on 27th July 2018, GST Council has again increased threshold limit from for registered taxable person to 1 crore 50 lakhs. Further, the limits were again revised with effect from 1st April 2019 as discussed above. तो ये जो 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने जो ये जो प्रेजेंट रेट है 1.5 करोड़ का 75 लाख का, वो उसको इन्होंने नोटिफाई किया है। It is important to note that composition scheme was already present under the previous state value added tax. कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है कि वैल्यू एडेड टैक्स जो था उसका जीएसटी के साथ क्या संबंध है। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो जीएसटी का टोटल स्ट्रक्चर है, ये इसका जो बेस लिया गया है वो वैट से ही लिया गया है। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये वैट में भी था, जैसे ये कॉम्पोजिशन स्कीम है, ये वैट में भी थी। तो बेसिकली ये इसका जो आधार है, जो बेस है, वो वैल्यू एडेड टैक्स ही है। सो विच आर नाउ सबज्यूम्ड इन द न्यू जीएसटी एक्ट। वैट को तो अब खत्म कर दिया गया है, वो जीएसटी में सबज्यूम कर दिया गया है। नाउ अंडर द प्रेजेंट जीएसटी डिजाइन, this scheme is for goods. Only one exception is hotels and restaurants. जो वैल्यू एडेड टैक्स में जो स्कीम थी वो सर्विसेज में भी थी, लेकिन अब जीएसटी में जो ये स्कीम आई है कॉम्पोजिशन की, ये सिर्फ गुड्स के लिए है, और एक ही एक्सेप्शन है इसमें कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ कॉम्पोजिशन लेवी रेट्स क्या है, यानी कि अगर आप इस स्कीम को अडॉप्ट करते हो तो आपको कितना जो जीएसटी है वो देना पड़ता है। पहली कैटेगरी है फॉर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स की। जो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी, यानी कि 1% total of the turnover for traders and manufacturers and other suppliers eligible for composition scheme registration. तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं, और जितनी उनकी टर्नओवर होगी, जैसे कि
नॉर्मल स्टेट में हम 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले लोग ही आएंगे। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करती है, फिर आप इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आप स्मॉल नहीं रहेंगे। जब आप स्मॉल नहीं रहेंगे तो इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको अपने टर्नओवर का 1% टैक्स देना होगा, यानी कि आधा उसमें सीजीएसटी होगा, आधा उसमें एसजीएसटी होगा। और जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए ये 5% होगा। 2.5% सीएसटी होगा और 2.5% एसजीएसटी होगा और टोटल 5% होगा, टोटल ऑफ द टर्नओवर फॉर रेस्टोरेंट्स एंड सर्विसेज। और ये जो होटल सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, उनके लिए है। फिर आता हूं मैं सर्विसेज में। सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि जो वैट में प्रोविजन थी उसमें सर्विसेज भी थी। अब इसमें भी सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया है 1 अप्रैल 2009 से। सो फॉर सर्विसेज 3% CGST plus 3% SGST is equal to 6% total of the turnover for business providing services, mixed services, other than restaurant services. क्योंकि रेस्टोरेंट के लिए, होटल रेस्टोरेंट के लिए 5%, बाकी सर्विसेज के लिए 6%, 6%. This is applicable from 1 April 2019 onwards. और ये 1 अप्रैल 2019 से अब सर्विसेज को इसके अंदर लाया गया और उस पर ये 6% टैक्स होगा टर्नओवर का कॉम्पोजिशन स्कीम में। अर्लियर सर्विसेज वर केप्ट आउटसाइड इट्स परव्यू, पहले सर्विसेज इसमें नहीं थी, बट नाउ कंपोजिट डीलर्स आर आल्सो अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज other than restaurant services, क्योंकि रेस्टोरेंट पर 5% है, for up to the value not exceeding 50 lakhs of turnover in the preceding financial year. सर्विसेज के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रखी गई है। The composition levy on services sector business other than restaurant is a recent addition to this list after 32nd GST Council meeting announced the composition scheme for services and mixed services. This composition scheme under GST Act will be applicable from 1st April 2019 onwards. Prior to this announcement, the services, mixed services businesses and individuals were not allowed to register under GST composition scheme. तो जुलाई 2017 में ये एक्ट शुरू हो गया था, राइट? तो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2019 तक ये जो सर्विसेज हैं ये बाहर रही हैं स्कीम से, लेकिन अप्रैल 2019 में इन स्कीम्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अब आते हैं हम कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। इस कंपोजिशन स्कीम को कौन अडॉप्ट कर सकता है? कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। A registered taxable person opting for composition levy scheme under GST should fulfill the following conditions. Number 1, not to collect tax from the customers. ये बहुत बड़ी प्रोविजन है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब आप किसी कॉम्पोजिट स्कीम वाले ट्रेडर के पास जाएंगे, वहां से कोई चीज खरीदेंगे, कोई सर्विस हायर करेंगे, वो आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं जीएसटी में होता हूं तो वो जो ट्रेडर है वो कंज्यूमर से ही जीएसटी कलेक्ट करता है और सरकार को देता है। लेकिन जब मैं किसी कॉम्पोजिशन स्कीम वाले ट्रेडर से कोई चीज लेता हूं तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कंज्यूमर से कोई टैक्स नहीं लेगा।
यानी कि ये जो 1%, 3%, 5% या 6% जो स्लैब रेट टैक्स है वो अपनी टर्नओवर पर अपनी जेब से देगा, कंज्यूमर से नहीं लेगा वो। So a registered taxable person opting for composition levy scheme under GST should not collect tax from the customers. यानी कि मैं अगर रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वो जो मुझे बिल इशू करेगा उसमें वो मेरे से जीएसटी नहीं ले सकता। बहुत से रेस्टोरेंट हैं, बहुत से लोग हैं, शुरू में ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, कस्टमर से जीएसटी लेना शुरू कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि लोग अदालतों में चले गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम में है और मेरे से टैक्स क्यों लिया जा रहा है। तो दो मेन बातें हैं इसमें कि वो कस्टमर से कोई टैक्स नहीं ले सकते, कंज्यूमर से कोई टैक्स नहीं ले सकते, और दूसरी बात है जो उन्होंने परचेज की है बेशक उस पर टैक्स दिया हो, बेशक परचेज करते हुए टैक्स दिया हो, जीएसटी दिया हो, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। सो दूसरी शर्त है नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। A registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not be eligible to take input tax credit on his purchases. तो ये जो दो मेन शर्तें हैं जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम की, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में होते हो तो उस ट्रेडर से अगर मैं कोई चीज लेता हूं, उस मैन्युफैक्चरर से कोई चीज लेता हूं, वो कंज्यूमर से कोई टैक्स नहीं ले सकता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मार्केट में निकलिए और बहुत सी दुकानों पर तो 95% दुकानों पर तो 90 to 95% दुकानों पर तो GSTIN नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, दुकान के बाहर लिख के लगा देते हैं। अब बैंक में चले जाइए, बैंक के बाहर लिखा हुआ मिलेगा आपको GSTIN नंबर, लेकिन कुछ दुकानें 100 में से 5-7 ऐसी मिलेंगी जिनके बाहर लिख के लगाया होगा कि वी आर नॉट अंडर GSTIN, वी आर अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। सो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम डीलर हूं, ये बाहर लिख के लगाया होता है। जब आप उस दुकान पर जाते हैं, उस ट्रेडर के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, तो क्या करना होगा आपको, ध्यान रखना होगा कि आपसे वो जीएसटी नहीं ले सकता। और दूसरी बात उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो है वो परचेजेस पर जो उसने जीएसटी दिया है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, वो उसको नहीं मिलेगा। सो ये दो मेन बातें हैं। Then we come to who are eligible to opt composition scheme. कौन लोग हैं जो composition scheme को अडॉप्ट कर सकते हैं? Right. Certain eligibility criteria have been laid down to opt for composition levy scheme under GST Act. It is not that every person who is a registered taxable person will be allowed to opt for said composition levy scheme under GST Act. The following category of registered taxable persons are eligible to opt for this scheme, composition levy scheme under GST. पहले है traders and manufacturers, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है other than manufacturers of notified goods. इसका मतलब है कि कुछ जो लोग हैं तो वो मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन वो नोटिफाइड गुड्स में मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इस स्कीम में आने की इजाजत नहीं है। फिर है होटल्स एंड रेस्टोरेंट, वो स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। Any registered taxable person stated above shall be eligible to opt for composition levy scheme under GST, provided that his aggregate turnover is below 1.5 crores
and 75 lakhs in special category of states. तो एक तो जो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, और मैन्युफैक्चरर्स में भी नोटिफाइड गुड्स वाले मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, वो स्कीम को ले सकते हैं। और उनकी जो टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, वो 1.5 करोड़ से नीचे होनी चाहिए और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 75 लाख से नीचे होनी चाहिए। अब ये हमने जो 75 लाख की स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, उनमें देखिए the aggregate turnover eligibility to opt for composition levy scheme under GST shall be below 75 lakhs in special category of 9 states as under. ये जो स्टेट्स हैं नॉर्मली ये पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, और वहाँ क्या होता है, वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, और क्योंकि हिल्स होती हैं ज्यादा और वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, बिजनेस कम होता है, यूं कह लो आप। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपकी 1.5 करोड़ की बजाय आपकी जो टर्नओवर है वो 75 लाख होनी चाहिए। Then aggregate turnover has been defined under section 2 subsection 6 of CGST Act 2017 that aggregate turnover made by all persons with same PAN shall include, इसमें क्या क्या शामिल है, all taxable supplies, all exempt supplies, all export supplies, all interstate supplies। तो ये जो टर्नओवर है इसमें ये सारी सप्लाईज जो हैं, टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जम्प्ट सप्लाईज, ऑल एक्सपोर्ट सप्लाईज, ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज, सब कुछ शामिल है उस 75 लाख या 1.5 करोड़ में। नाउ मैन्युफैक्चरर्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ये जो यहाँ पर ये बात आई हुई है कि अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरर्स पर ये स्कीम लागू नहीं होती। The government has notified the following manufacturers who are not eligible to adopt for composition levy scheme under GST। क्योंकि वैसे जो ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एलिजिबल हैं अगर उनकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से नीचे है या 75 लाख से नीचे है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में। लेकिन ये 3 तरह के मैन्युफैक्चरर्स को नोटिफाई कर दिया गया है। दीज आर नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर्स जो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते, चाहे उनकी, ध्यान से सुन लो, चाहे उनकी टर्नओवर कुछ भी हो, वो स्कीम में नहीं आ सकते। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स को के मैन्युफैक्चरर्स हैं। नंबर 2 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला, बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है पान मसाला की टीवी पर। देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, तो तंबाकू बनाने वाले, पान मसाला बनाने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले, ये इस स्कीम में नहीं आ सकते। ये हैं तो मैन्युफैक्चरर्स लेकिन ये नोटिफाइड हैं, इन पर ये स्कीम लागू नहीं होती। एक बात जो आपको मैं बता दूं, जो लिखी तो नहीं हुई है लेकिन जो समझ में आ सकती है, कि ये 3 मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं। ये तीनों मैन्युफैक्चरर्स वो हैं जिनकी जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए अच्छी चीजें नहीं है। आइसक्रीम भी उसी में है। बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो हेल्थ पर कह लो आप वीडियो बनाते हैं, हेल्थ पर प्रोग्राम देते हैं। एक बार किसी ने पूछा, हेल्थ पर प्रोग्राम दे रहा था, तो क्योंकि मैरिजेस में अक्सर ये आइसक्रीम जो है जरूर होती है, तो एक आदमी ने उस
मेंटर से पूछा, जो हेल्थ पर मॉनिटरिंग कर रहा था, हेल्थ पर लेक्चर दे रहा था, उससे पूछा कि सर आइसक्रीम कब खानी चाहिए। उसने पूछा कि आइसक्रीम कब खानी चाहिए। तो वो जो हेल्थ पर लेक्चर दे रहा था आदमी, उसने जो जवाब दिया वो बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे भी, लेकिन है बड़ा स्टीक। पता क्या कहता है? उसने कहा आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए। उसने क्वेश्चन तो ये पूछा कि क्योंकि गर्म खाना खाते हैं उसके बाद ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, कि पहले आइसक्रीम खा लें फिर गर्म खाना खा लें, या तो उसने ये पूछा कि आइसक्रीम कब खानी चाहिए, और उसका जवाब उसने ये दिया, आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए। सो पान मसाला भी ऐसे ही है, आपको पता होना चाहिए। पान मसाला जो है, जो ये जो लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, इन इससे माउथ का कैंसर होने का खतरा रहता है। ये माउथ कैंसर इससे बहुत ज्यादा होता है। और टोबैको भी, तंबाकू भी, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तंबाकू से भी कैंसर का ही खतरा रहता है। तो ये तीनों मैन्युफैक्चरर जो हैं वो उस कैटेगरी से हैं जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसलिए इन मैन्युफैक्चरर्स को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। नाउ who are not eligible to opt composition levy scheme. कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को कौन लोग हैं जो अडॉप्ट नहीं कर सकते? Under GST Act, the following category of persons shall not be eligible to opt for composition levy scheme under GST: service providers, except hotels and restaurants, उनको छोड़ दीजिए क्योंकि वो स्कीम में अंदर हैं। Composite dealers are also allowed to supply services other than restaurant services for up to the value not exceeding 10% of the turnover in the preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is high. तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, जिसमें कहता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को छोड़ दिया जाए, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ दिया जाए, कॉम्पोजिशन डीलर इसमें आते हैं फॉर अप टू दी वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आपकी जो टर्नओवर है उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स की टर्नओवर है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विच एवर इज हाई। तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। देन पर्संस मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि अगर आप इंटरस्टेट बिजनेस में है तो आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके लिए तो जीएसटी जो है नंबर कंपलसरी हो जाता है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, इंटरस्टेट परचेजेस आर अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इंटरस्टेट परचेज तो कर सकते हो, लेकिन इंटरस्टेट अगर सेल करनी है तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको जीएसटी में जाना ही होगा। Then suppliers of goods not covered under GST, तो जो उन चीजों की सप्लाई करते हैं जो जीएसटी में आती ही नहीं है। Then persons making supplies through e-commerce, अब जिसको ऑनलाइन बिजनेस कह रहे हैं आजकल हम, ये फ्लिपकार्ट है, ये जो कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करती हैं, राइट, अमेजोन है, वो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं, वो भी इस स्कीम में नहीं आ सकते। और लास्ट हेडिंग है हमारा के बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। अगर आप इस स्कीम को अडॉप्ट करते हो, यानी कि इफ यू आर एलिजिबल और आप इस स्कीम को अडॉप्ट करते हो तो आपको क्या फायदा हो सकता है? Any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall enjoy the following privileges. Number 1, books of accounts. Any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not be required to maintain detailed books of accounts.
आपको तो सिर्फ अपनी टर्नओवर का हिसाब रखना है, क्योंकि आपने तो टर्नओवर पर टैक्स देना है। अब कोई डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। मंथली रिटर्न्स, any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not be required to file 3 monthly returns. वो जो हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं जीएसटी में, आपको नहीं करनी पड़ेंगी। देन टैक्स इनवॉइस, ना आपको टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करना पड़ेगा। Any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not be required to issue tax invoices. आप टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कंज्यूमर से टैक्स ले ही नहीं सकते, तो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते। देन प्रोसीजर टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, आपको क्या करना है? We know that existing person who are already registered under earlier indirect tax laws, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज है, चाहे वो वैट है, चाहे वो सीएसटी है, चाहे वो सर्विस टैक्स है, will have to get themselves registered under GST Act compulsorily, irrespective of their turnover limits. ये हम जानते हैं। Such existing taxpayers will be able to opt for composition levy scheme under GST by filing application in form GST CMP composition number 1 before 30th September 2017. But any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not have with him any goods purchased from interstate suppliers as on 30 जून 2017। खैर पुरानी बात हो चुकी है अब तो, कि आपने कोई माल जो है वो खरीदा नहीं होना चाहिए इंटरस्टेट। अब तो खैर ये बात पुरानी हो चुकी है। New persons opting for composition levy scheme under GST shall apply in form GST REG 01. So any registered taxable person willing to convert for composition levy scheme under GST shall have to apply in form GST composition 2. This application shall be filed before the start of the financial year and it shall be applicable for the whole financial year. कई लोग हैं जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जीएसटीआईएन नंबर ले लिया, और बाद में उनको लगा कि यार इससे अच्छा तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेते, तो वो लोग जीएसटी कॉम्पोजिशन फॉर्म नंबर 2 भर के इस स्कीम में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। नॉट टू इशू इनवॉइस, कोई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे आप। Any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall not be collecting tax from his customers and consequently he will not be issuing any taxable invoice. ना वो कंज्यूमर से टैक्स ले सकते हैं, ना वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। बिल ऑफ सप्लाई, any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall issue bill of supply with all the particulars of supply except tax portion. यानी कि बिल ऑफ सप्लाई में क्या होता है, जीएसटी नहीं होगा। द बिल ऑफ सप्लाई issued by a composition dealer shall contain the words composition taxable person not eligible to collect taxes on supplies. तो आप उसमें लिखेंगे कि मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं और टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं टैक्स जीएसटी कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हूं, और यानी कि आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं जिसमें टैक्स नहीं होगा। देन रिटर्न ऑन कॉम्पोजिशन डीलर, any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST shall file his return in form number GSTR04. He has to file his return quarterly between 11th and 18th of the month succeeding the end of the quarter. आपको हर क्वार्टर के बाद, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको 11 से लेकर 18 तारीख के अंदर क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट मंथ में एक रिटर्न फाइल करनी होगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्नओवर क्रॉसिंग 1.5, मान लो आपने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम अडॉप्ट कर ली, लेकिन आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गई या 75 लाख को क्रॉस कर गई
स्पेसिफाइड नाउ जो 9 स्पेशल स्टेट्स हैं, तो क्या होगा? So where the turnover of any registered taxable person opting for composition levy scheme under GST crosses 1.5 crore, the benefit under the scheme shall lapse. आप इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो अब आपको नहीं मिलेंगे. He shall have to withdraw his option using GST composition 04. आपको GST composition 4 फॉर्म जो है ये भरना होगा और सरकार को बताना होगा कि भाई मेरी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गई है, इसलिए मैं इस स्कीम से बाहर हूँ. He shall be eligible to take input tax credit on the stock in hand as on that date. ये इम्पोर्टेंट बात है कि हो सकता है आपके पास, क्योंकि स्टॉक तो होगा ही आपके पास जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जब आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे तो GSTNI में आ जाएंगे, GSTIN नंबर आप लेंगे और फिर जो आपके पास स्टॉक पड़ा है उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे. क्योंकि इस कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में हम वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जब मेरी टर्नओवर क्रॉस कर जाएगी और मैं GSTIN में चला जाऊंगा, कॉम्पोजिशन स्कीम के बेनिफिट मुझे नहीं मिलेंगे, तो मुझे GST के बेनिफिट मिलेंगे. और GST का मेन बेनिफिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूं. तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा है वो उसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे. Now he will also be liable to collect tax from his customers as registered taxable person. दो बातें जो इस स्कीम की हैं वो खत्म हो जाएंगी और मैं दूसरी स्कीम में चला जाऊंगा. अब मैं कंज्यूमर से टैक्स ले सकूंगा. जब मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में था तो मैं कंज्यूमर से टैक्स नहीं ले सकता था, अब मैं कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट कर सकूंगा. और दूसरी बात, जब मैं कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं क्लेम नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं इस स्कीम से बाहर हो गया, GSTIN में आ गया, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट उस स्टॉक पर भी क्लेम कर सकूंगा जो पहले से मेरे पास पड़ा है. तो दोनों बेनिफिट जो इसके खत्म हो जाएंगे तो उस स्कीम में चला जाऊंगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए. किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कुछ पार्ट्स, क्योंकि अब आपका एग्जाम पता नहीं ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, भगवान जाने. अभी तक कोई यूनिवर्सिटी ने फैसला तो लिया नहीं है. तो ऑनलाइन होता है तो बच्चे फिर वो कुछ चीजें क्योंकि मैटर कर रही हैं, वो खास तौर पर जब आपकी आंसर बुक की छोटी हो जाती है और एक साइड पर ही आपको लिखना है तो क्वेश्चन छोटे आ जाएंगे. जब अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन बड़े आ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्लास के बाद मैं ये PDF फाइल बना के आपको भेज दूंगा, राइट? सर विल बी मीटिंग डे आफ्टर नाउ. सर